محترم ناظرین، دل و دماغ پر دستک دینے والی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے جا رہے ہیں کہ جسے سنتے ہی انسان حیرت، خوف اور تجسس کی کیفیات میں گھر جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جسے سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، سانس رک جاتی ہے اور عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی قصہ نہیں، بلکہ ایک ایسا عجیب و غریب اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا ماجرا ہے جو روح کے تاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ داستان ہے عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور ان کے بے مثال عاشق صادق حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کی۔ وہ ہستیاں جن کے نام کے ساتھ عقیدت بھی وابستہ ہے، محبت بھی، اور وہ راز بھی جو ہر کسی پر منکشف نہیں ہوتے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو نعوذ باللہ ہندوؤں نے ذبح کر کے کھا لیا تھا۔ یہ سن کر ہی دل کانپ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا انتہائی حیرت انگیز اور چونکا دینے والا واقعہ مانا جاتا ہے۔ اسی لیے میری آپ سب سے انتہائی عاجزانہ اور پرخلوص گزارش ہے کہ اس قصے کو مکمل طور پر سمجھنے، اس کی گہرائیوں میں اترنے اور اس میں پنہا معانی اور مفاہیم کو محسوس کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ قصہ صرف کانوں سے سننے کا نہیں، دل سے محسوس کرنے کا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے انتہائی درجہ عشق و الفت رکھتے تھے۔ یہ محبت کوئی عام سی عقیدت نہ تھی، بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا وہ رشتہ تھا جس میں مرشد کی ذات ہی کائنات بن جاتی ہے۔ ان کا دل، ان کی سوچ، ان کی سانسیں سب اپنے مرشد کامل کے نام پر قربان تھیں۔ اور دوسری جانب قلندر وقت حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ بھی ان سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ تعلق صرف ظاہری نہ تھا، بلکہ روحانی رشتے کی وہ ڈور تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسا رشتہ جس میں خاموشی بھی بولتی ہے اور نظر بھی پیغام دے جاتی ہے۔ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نہایت ہی زیادہ محبت، شفقت اور خاص عنایت کا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ یہ محبت محض رسمی یا ظاہری نہ تھی، بلکہ ایسی گہری، خاموش اور روح میں اتر جانے والی محبت تھی جسے لفظوں میں پوری طرح بیان کرنا ممکن ہے نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ اپنے اس خاص بندے خدا کو عام مریدوں سے جدا مقام عطا فرماتے تھے، ان پر خاص نظر رکھتے اور ان کے احوال سے بخوبی واقف رہتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب ہی ایک مضبوط اور خوف کی علامت سمجھا جانے والا قلعہ موجود تھا۔ اس قلعے میں اس علاقے کا ظالم و جابر حکمران رہا کرتا تھا جس کا نام راجہ چوپٹ بتایا جاتا ہے۔ یہ شخص بظاہر ایک بادشاہ تھا، مگر اپنی فطرت میں درندگی، ظلم اور بددماغی رکھتا تھا۔ سیون شریف اور اس کے گرد و نواح کے تمام علاقوں میں اس راجہ کی ظالمانہ داستانیں زبان زد عام تھی۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اس ظالم راجہ گھر کے ظلم و ستم سے لوگ بری طرح تنگ آ چکے تھے۔ اس کی جابرانہ حکومت، بے رحم فیصلے اور ظالمانہ سزائیں عوام کے دلوں میں خوف بٹھا چکی تھی۔ ہر گلی، ہر کوچے اور ہر بستی میں اس کے ظلم کی کہانیاں سرگوشیوں میں بیان کی جاتے۔ لوگ اس کے نام سے ہی کانپ اٹھتے تھے اور اس کے کارندوں کا سایہ دیکھ کر بھی سہم جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کی ظالمانہ کارروائیوں کا زیادہ تر شکار مسلمان ہوا کرتے تھے۔ وہ بلا وجہ مسلمانوں کو ستاتا، ان پر جھوٹے الزام لگاتا اور کبھی قید تو کبھی سخت سزاؤں کا نشانہ بناتا۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ اگرچہ وہ خود ہندو تھا، مگر اس کا سلوک اپنے ہی مذہب کے لوگوں یعنی ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہ تھا۔ وہ ہر اس شخص کو کچل دیتا تھا جو اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت کرتا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ظلم و ستم سے تمام لوگ بلا تفریق مذہب و ملت شدید اذیت میں مبتلا تھے۔ کسی کو جان کا خطرہ تھا، کسی کو مال کا اور کسی کو عزت و آبرو کا۔ فضا میں خوف معلق تھا، دلوں میں بے بسی تھی اور آنکھوں میں خاموش فریاد۔ لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے فریاد کرتے اور دن میں ایک دوسرے کو دیکھ کر بس یہی کہتے کہ کاش کوئی نجات دہندہ ہو، کاش کوئی ایسا ہو جو ہمیں اس ظالم کے چنگل سے آزاد کر دے۔ لوگ سخت نالاں تھے، بے حد پریشان اور دل ہی دل میں کرتے تھے،
मगर खामोश रहने पर मजबूर थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस जालिम राजा के पास बहुत बड़ी मुनज्जम और खौफनाक फौज मौजूद थी। तलवारों की झिनकार, घोड़ों की टापें और सिपाहियों की ललकार ने पूरे इलाके को खौफ के हिसार में जकड़ रखा था। इसकी हुकूमत की हुदूद में रहने वाला कोई एक फर्द भी ऐसा न था जो इसकी जालिमाना कार्रवाइयों से दिल से खुश हो। हर दिल में नफरत थी, हर आंख में खौफ, मगर जबानें बंद थी। अलबत्ता एक तबका ऐसा जरूर था जो राजा के करीब था। वो खास लोग जिन पर उसकी इनायात और नवाज़शात हुआ करती थी। वही लोग थे जो दरबार में जगह पाते, वही उसके जुल्म को इंसाफ और उसके जबर को हिकमत कहकर पेश करते थे। उन्हीं चंद मफाद परस्त और खुशामदी लोगों की वजह से राजा चौपट अपने आप को नाकाबिल शिकस्त समझता था और उसके गरूर में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था। उन्हीं अय्याम में, उन्हीं हालात के बीच राजा के कानों तक एक अजीब और गरीब खबर पहुंचाई गई। उसे बताया गया कि इलाके में एक ऐसा मजजूब सिफत शख्स मौजूद है जो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का इस कदर दीवाना है कि उसकी जिंदगी का मकसद ही बस एक है। कहा गया कि उस शख्स के नजदीक सारी दुनिया की कोई हैसियत नहीं। अगर कोई हस्ती उसके दिल पर राज करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह हैं। खबर देने वालों ने राजा को यह भी बताया कि वो शख्स अक्सर दीवानगी की हालत में रहता है। उसकी आंखों में अजीब सी मस्ती होती है, उसकी जबान पर एक ही नाम होता है और वो बेखुद होकर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मस्ताना वार नारे लगाता फिरता है। लोग उसे देखकर हैरान भी होते हैं और खौफजदा भी कि ये कैसा इश्क है जो इंसान को खुद से बेनियाज कर देता है। ये बात सुनकर राजा चौपट चूंक उठा। उसके दिल में एक अजीब सा खटका पैदा हुआ। वो उस मजजूब का जिक्र बार बार सुनने लगा, उसके बारे में सवाल करने लगा और उसके जुनून को समझने की कोशिश करने लगा। राजा चौपट अक्सर इस मजजूब का जिक्र अपने खास आदमियों में किया करता, कभी तंज के अंदाज में, कभी हैरत से और कभी किसी छुपे हुए गुस्से के साथ। राजा चौपट ये बात पहले भी सुन चुका था, मगर उसके दिल में अब भी बेचैनी थी। उसने मजीद तहकीक करवाई और मालूम किया कि आखिर वो मजजूब शख्स है कौन जो इस कदर बेखौफ होकर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का नाम बुलंद आवाज से लेता फिरता है। दरबारियों ने अर्ज किया कि वो शख्स हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है, एक निहायत ही सादा और मिस्कीन मजदूर आदमी है जिसके पास न माल है, न ताकत, न कोई जाहिरी सहारा, मगर इसके दिल में इश्क की ऐसी आग है जो बुझने का नाम नहीं लेती। ये सुनकर राजा चौपट के चेहरे पर एक सख्ती सी आ गई। गुरूर, गुस्सा और तजस्सुस उसकी आंखों में इकट्ठा झलकने लगा। उसने फौरन हुक्म सादिर किया, इस मजदूर को मेरे सामने पेश किया जाए। हुक्म की देर थी, सिपाही रवाना हुए और कुछ ही देर बाद हजरत सिकंदर बूदला बहार रहमतुल्लाह अलैह को, जो बज़ाहिर एक मामूली मजदूर थे मगर बातिन में इश्क कलंदर का समंदर, राजा चौपट के सामने ला खड़ा किया गया। दरबार में खामोशी छा गई। हर आंख इस मंजर को देख रही थी। हर दिल में एक अनजान खौफ और तजस्सुस मौजज़न था। राजा चौपट ने तेज निगाहों से इस मजदूर को देखा, फिर सख्त लहजे में सवाल किया, क्या तुम ही हो जो हर वक्त लाल शहबाज कलंदर के नारे बुलंद करते फिरते हो? यह सवाल दरअसल एक धमकी था, एक इम्तिहान था, मगर इस अल्लाह वाले के चेहरे पर न खौफ आया न घबराहट। उसने पूरे इत्मीनान, यकीन और सरशारी के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं ही हूं जो नारे लगाता हूं और मुझे उस पर फख्र है। मेरा मुर्शिद, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ लाल साईं है। ये कहकर बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी खौफ के, उस मजदूर ने एक बार फिर दीवानावार नारे लगाना शुरू कर दिए। उसकी आवाज में मस्ती थी, उसके लहजे में बेखुदी और उसके लफ्जों में वो यकीन था जो तख्त व ताज को भी लर्जा दे। दरबार में खड़े लोग सहम गए, कुछ के दिल कांप उठे और कुछ ने सर झुका लिया। मगर राजा चौपट के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। इसके लिए ये सिर्फ नारे न थे, बल्कि उसकी बादशाहत, उसके गुरूर और उसकी ताकत को चैलेंज था। उसने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली, आंखें सुर्ख हो गईं और उसके दिल में एक खतरनाक इरादा जन्म लेने लगा। जब राजा चौपट ने मजीद पूछा कि इस मजदूर का नाम क्या है, तो दरबारियों ने अर्ज किया कि इसका नाम सिकंदर बूदला है।
ये नाम सुनते ही राजा ने एक बार फिर हजरत सिकंदर बूदला बहार रहमतुल्लाह अलैह को गौर से देखा, जैसे उसके दिल में नफरत, गुस्सा और तासुब एक साथ उभर आए। फिर उसने सख्त तहकीर आमेज और हुक्म देने वाले लहजे में कहा, सिकंदर बूदला, आज के बाद लाल शहबाज कलंदर का नारा लगाना छोड़ दो। अगर तुमने दोबारा इसका नाम लिया तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। ये अल्फाज दरअसल एक धमकी थे, एक आजमाइश थी, एक आखिरी वार्निंग। दरबार में मौजूद लोग सहम गए, किसी ने सांस रोक ली, किसी ने नजरें झुका ली और किसी के दिल में ख्याल आया कि अब ये मजदूर अपनी जान बचाने के लिए खामोश हो जाएगा। लेकिन हजरत सिकंदर बूदला बहार रहमतुल्लाह अलैह वो नहीं थे जो खौफ के आगे झुक जाएं। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी सरशारी आ गई, आंखों में इश्क की चमक और दिल में मस्ती की लहर दौड़ गई। और फिर उन्होंने पहले से भी ज्यादा दीवानावार, ज्यादा बुलंद आवाज में, ज्यादा जोश और बेखुदी के साथ हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नारे लगाना शुरू कर दिए। उनके नारे दरबार की दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। वो नारे सिर्फ आवाज न थे, बल्कि एक ऐलान थे, इश्क का ऐलान, वफा का ऐलान, मुर्शिद पर जान निछावर करने का। ये मंजर देखकर राजा चौपट की बददमागी अपनी इंतहाओं को पहुंच गई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, आंखों में खून उतर आया और उसका गुरूर बुरी तरह मजरूह हो चुका था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक मामूली मजदूर ने उसकी बादशाहत को ठुकरा दिया हो, उसके हुक्म को पांव तले रौंदा हो। गुस्से के आलम में बगैर किसी तवक्कुफ के उसने एक निहायत ही सफ्फाक और लर्जा देने वाला हुक्म जारी कर दिया। उसने कहा, इस मजदूर को फौरन ज़िबह कर दिया जाए और ज़िबह करने के बाद उसका गोश्त खा लिया जाए। ये हुक्म सुनकर दरबार में मौजूद लोग लड़ज उठे। ये कोई आम सजा न थी, बल्कि एक ऐसी वहशियाना सजा थी जो इंसानी फितरत को भी शर्मसार कर दे। ये हुक्म दरअसल एक वहशियाना हथियार था, एक ऐसा तरीका जिसके जरिए वो एक ऐसी कौम को जो गोश्त नापसंद करने वाली समझी जाती थी, जिल्लत, खौफ और इबरत का निशान बनाना चाहता था। राजा हुक्म दे रहा था कि गोश्त खाया जाए, और वो भी किसी जानवर का नहीं, एक इंसान का। ये सुनकर भी उसके दिल में कोई लर्जिश पैदा न हुई, क्योंकि जिन लोगों को यह काम सौंपा गया था वो खुद भी वहशी दरिंदों से कम न थे। उनके लिए यह महज एक जालिमाना हुक्म की तामील न थी, बल्कि उनके दिलों में एक घनावनी खुशी भी छुपी हुई थी। उन्हें इस बात से मुसर्रत हो रही थी कि वो एक मुसलमान का गोश्त खा रहे हैं। उनके चेहरों पर नफरत, तासुब और सफ़ाकी साफ झलक रही थी, और उनके दिल इंसानियत के नाम से बिल्कुल खाली हो चुके थे। इधर जनाब हजरत सिकंदर बूदला बहार रहमतुल्लाह अलैह को बेदर्दी के साथ ज़िबह कर दिया गया। वो अल्लाह वाले, वो आशिक कलंदर, वो मर्द मजजूब सिफत, जिनकी जबान पर आखिरी दम तक अपने मुर्शिद का नाम था, उन्हें बेरहमी से शहीद किया गया। फिर इस जुर्म की इंतहा ये हुई कि उनके जसद मुबारक का गोश्त पकाया गया, और उस नापाक अमल को अंजाम देते हुए वो लोग उस गोश्त को खाने लगे। यह मंजर ऐसा था कि अगर आसमान भी देखता तो लरस जाता, अगर जमीन भी महसूस करती तो कांप उठती। मगर नाजरीन, कहानी का एक और पहलू भी है, और वो पहलू और भी ज्यादा हैरत अंगेज और पुरअसरार है। उधर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह एक बिल्कुल मुख्तलिफ आलम में थे। वो दीवानगी की हालत में धमाल डाल रहे थे। उनके कदम जमीन पर थे, मगर उनकी रूह किसी और ही दुनिया में परवाज कर रही थी। धमाल डालते हुए वजद की कैफियत में बार बार उनकी जबान से एक ही नाम निकलता था, सिकंदर बूदला बहार। वो धमाल डालते, घूमते, झूमते और हर चंद लम्हों बाद अपने महबूब मुरीद को पुकारते। उनकी आवाज में न खौफ था न गम, बल्कि एक अजीब सा यकीन, एक गहरा सा राज और एक नाकाबिले बयान कैफियत थी। रिवायतों में आता है कि जनाब हजरत सिकंदर बूदला बहार रहमतुल्लाह अलैह जहां कहीं भी होते, चाहे किसी हाल में होते, किसी मकाम पर होते, जब भी उनके मुर्शिद कामिल उन्हें पुकारते, वो फौरन अपने मुर्शिद के कदमों में पहुंच जाते। ये रिश्ता जिस्म का नहीं था, ये ताल्लुक फासले का नहीं था, बल्कि ये वो रूहानी बंधन था जो वक्त, जगह और हालत का मोहताज नहीं होता। मगर इस लम्हे, ये लम्हा कुछ और था, ये कैफियत कुछ और थी, क्योंकि इस बार यूं हुआ कि जैसे ही हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह धमाल डालते हुए दीवानगी और वजद की इस कैफियत में पहुंचे जहां होश और खिरत की हदें टूट जाती हैं,
तो उन्होंने पूरी सरशारी के साथ अपने महबूब मुरीद को पुकारा, ए सिकंदर बूदला, ए सिकंदर बूदला। ये पुकार आम आवाज न थी, ये वो सदा थी जो रूहों को चीरती हुई अपने मकसद तक पहुंचती है। ये वो आवाज थी जो फासले, पर्दे, जिस्म और जमान और मकान की कैद से आजाद होती है। जैसे ही ये सदा बुलंद हुई, दूसरी जानिब एक अजीब और गरीब लर्जा देने वाली वारदात पेश आ गई। ऐसी वारदात जिसने देखने वालों की अक्ल स्लिप कर दी और जालिमों के दिलों में खौफ की आग भड़का दी। जिन लोगों ने हजरत सिकंदर बूदला बहार रहमतुल्लाह अलैह का गोश्त खाना शुरू कर दिया था, उन पर अचानक एक नाकाबिले बयान कैफियत तारी हो गई। जो बोटियां वो खा चुके थे वो उनके मेदे से उबलने लगी, जो लुकमे अभी उनके हाथों में थे वो उनकी गिरफ्त से फिसलने लगे, और जो नवाले उनके मुंह में थे वो भी मुंह से निकल निकल कर बाहर आने लगे। ये सब कुछ किसी कुदरती अमल के तहत नहीं हो रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई गैबी ताकत उन्हें अंदर अंदर से झंझोड़ रही हो। वो चीखने लगे, कांपने लगे, मगर कुछ उनके इख्तियार में ना रहा। हैरत अंगेज तौर पर वो तमाम बोटियां, वो तमाम गोश्त एक ही समत खिंचता चला जा रहा था, और वो समत थी हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मकाम। यही बात खत्म नहीं होती। रिवायतों में आता है कि जो गोश्त हांडियों और देगचों में पक रहा था, जो आग पर चढ़ा हुआ था, जो अभी किसी ने चखा भी न था, वो भी एक एक करके अपनी जगह छोड़ने लगा। देगों में जोश मचा, हांडियां खाली होने लगी, और वो पकता हुआ गोश्त भी निकल निकल कर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना होने लगा। ये मंजर ऐसा था कि देखने वालों के होश उड़ गए। कोई चीख रहा था, कोई जमीन पर गिर पड़ा, कोई हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगा। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे कुदरत खुद इस जुल्म का हिसाब ले रही हो, जैसे औलिया-उल्लाह की हुर्मत का बदला इसी लम्हे लिया जा रहा हो। और दूसरी तरफ हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह धमाल में थे, वजद में थे, और मुसलसल अपने मुरीद का नाम ले रहे थे। उनकी आवाज में न गुस्सा था न इंतकाम, बल्कि एक पुररहबत सुकून था, एक ऐसा इत्मीनान जो सिर्फ अहले राज को नसीब होता है। ये वो लम्हा था जब जमीन और आसमान के दरमियान एक पर्दा सा हट गया था और इश्क मुर्शिद और मुरीद का राज अयां हो रहा था। जब तमाम बोटियां और पकाई जाने वाली बोटियां हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गईं, तो एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वो तमाम बोटियां एक जिस्म की शक्ल इख्तियार कर गई हों। वो जिस्म वही था जो सबके दिलों को दहला देता, और वो जिस्म जनाब हजरत बूदला बहार रहमतुल्लाह अलैह का था। गोश्त जो जुल्म और सितम का शिकार हुआ था, अब दोबारा अपनी असल सूरत इख्तियार करके कलंदर के सामने हाजिर हो गया। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन राजा चौपट को अपने सामने बुला लिया और उसे दिखाया। उनके हाथ में वही मजहर था जिसे राजा ने कत्ल किया, पकाया और अपने साथियों को खिलाया। कलंदर ने पुरअमन मगर सख्त लहजे में कहा, देखो, तुमने मेरे मुरीद को कत्ल किया, उसका गोश्त पकाया और अपने हाथों से दूसरों को खिलाया, मगर देखो, वो जिंदा है, वो कायम है। ये है सिकंदर बूदला बहार। ये मंजर देखकर राजा चौपट एक लम्हे के लिए घबरा गया। उसके गुरूर, जुल्म और ताकत की बुनियादें लरज गईं, मगर गुरूर और सफाकियत ने उसे फौरन माफी मांगने या अपनी गलती का इकरार करने की इजाजत न दी। वो जाबिर लोग जिनकी आदत हमेशा से जुल्म और बर्बरियत रही है, अपनी बदआमालियों पर कभी नादिम नहीं होते। यही वो दस्तूर है जो हमेशा से जालिमों के दिलों में बसा रहता है, न रहम, न खौफ, न शर्म। और इसी दस्तूर के तहत राजा चौपट ने अपनी आजजी या निदामत दिखाने के बजाय सिर्फ हैरत और धड़कते दिल के साथ इस मंजर को बर्दाश्त करने की कोशिश की। इसके आमाल और कल्बी संगदिली ने उसे अभी भी मुकम्मल तौर पर इंसानियत के करीब आने नहीं दिया था, और यही वो कैफियत थी जो उसके जाबिराना किरदार की अक्कासी करती थी। जाहिरी निशानियों और हकीकत के सामने आने के बावजूद राजा चौपट ने अपने आमाल दुरुस्त करने के बजाय और भी ज्यादा मगरूर और खुदसर हो गया। यही वो खसलत है जो अक्सर जालिम हुक्मरानों में देखी जाती है, न नदामत, न शर्म, न खौफ। वो अपनी ताकत और गुरूर के सहारे हर जुल्म और जबर को जवाब समझ बैठते हैं। यही कुछ राजा चौपट के साथ भी हुआ। राजा चौपट ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से कहा
कि मैंने इस मजदूर को कत्ल करवाया क्योंकि मेरे किले की एक दीवार में एक खिड़की है जहां अक्सर मेरी बेटी बैठकर अपने बाल संवारती है, और वो शख्स मेरी बेटी पर आशिक हो गया था। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैंने अपनी बेटी की रुसवाई से बचने के लिए उसे कत्ल करवा दिया। ये कहना दरअसल झूठ और गुरूर का अमली इजहार था। राजा चौपट ने अपनी बदअमालियों पर पर्दा डालने और अपने गुरूर को बचाने के लिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वो अपने दिल की सख्ती और सफाकी को छुपाने के लिए ये झूठ बोल रहा था, और इसी झूठ को एक जवाज के तौर पर पेश करके हजरत सिकंदर बूदला बहार रहमतुल्लाह अलैह पर इल्जाम तराशने की कोशिश की। ये मंजर जाहिर करता है कि जुल्म की इंतहा पर बैठा शख्स अपनी गलतियों को कभी कबूल नहीं करता, चाहे हकीकत कितनी ही वाज़े हो, चाहे मौजज़ा सामने हो, मगर गुरूर, तकब्बुर और अपने आमाल की माफी से इनकार हमेशा उसके दिल में बसी रहती है। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने राजा चौपट से फरमाया कि तुम्हें इस काम का नतीजा भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे जुल्म और सफाकी के दिन गिने जा चुके हैं। मगर जालिम राजा चौपट ने अपने गुरूर और तकब्बुर में मस्त हजरत कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को उल्टा धमकियां देते हुए अपने महल की तरफ रवाना हो गया। महल की तरफ जाते हुए उसने न सिर्फ हजरत कलंदर पर बल्कि उनके मुरीदों पर भी बेजा इल्जामात लगाए, झूठे इल्जामात जो उसकी सफाकी और झूठ पर मबनी थे। वो चाहता था कि जुल्म और झूठ के सहारे अपने गुरूर को कायम रखे और हकीकत को छुपाए। जब राजा चौपट महल की तरफ चला गया, हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कासा उलट दिया। देखने में तो ये कोई खास बात न थी, और न ही मुरीदीन हजरात ने फौरन उस पर तवज्जो दी। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, सब कुछ पुरसुकून और रिवायती नजर आ रहा था। मगर चंद ही लम्हों के बाद एक अजीब व गरीब वाकया सामने आया। मालूम हुआ कि राजा चौपट का किला उलट गया है। वो किला जो ताकत, गुरूर और जुल्म का मरकज समझा जाता था, अब अपने ही गुरूर की जद में आकर लर्जने और गिरने लगा। वक्त ने जैसे जुल्म और बदआमालियों की सजा की घड़ी शुरू कर दी थी, और हर लम्हा उसका अंजाम करीब आता जा रहा था। जालिम और बददिमाग राजा का यह किला नाम और निशान तक मिट गया। नाजरीन और मकामी लोग जो इस मंजर को देख चुके हैं, आज भी बताते हैं कि इस जगह कुछ अजीब व गरीब चीजें वक्तन फवक्तन सामने आती रहती हैं। वो कहते हैं कि यहां से कभी कोई गैर मामूली शय निकलती है, कभी कुछ पुरअसरार अलामात जाहिर होती हैं जो इस कहानी की हकीकत और इसके असरार की याद दिलाती हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही लम्हे में उस जालिम राजा को उसके हर एक साथी समेत जिंदा जमीन में दफरा करवा दिया। उसी के साथ साथ उसकी जालिमाना कार्रवाइयां और जुल्म और सितम का सिलसिला भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। सिर्फ उसकी दास्तानें बाकी रह गईं जो आज भी लोगों के दरमियान नकल होती हैं, और जिन्होंने जुल्म भगता उन्होंने कुछ लम्हों के लिए सुकून और राहत की सांस ली। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।